सिस्टर क्या नाम है आपका? पलविंदर कौर। कहाँ से आप? मैं पिंड करतारपुर के कोल पिंड है हसन मुंडा। इस बहन की गवाही है कि पिछले 5 साल से इस बहन को अस्थमे का रोग था। जब भी ये बहन थोड़ा सा भी चलते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती थी, खिंच खिंच कर ये सांस लेते थे बहुत ज़्यादा। उसी बीमारी के कारण ये बीमार रहने शुरू हुए। धूल मिट्टी वाला ये काम नहीं कर पाते थे अपने घर में, ना तो घर में कोई झाड़ू वाला मिट्टी का काम कर पाते थे। बहुत परेशान थे ये, ना तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, पानी, ठंडा पानी, ये सब चीज़ें नहीं ले पाते थे। बहुत परेशान थे क्योंकि जब भी ये इस्तेमाल करते थे ये बीमारी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इन्हें सांस बिल्कुल भी आना बंद हो जाता था, खिंच खिंच कर ये सांस लेते थे। और जब भी मौसम बदलता था, मौसम के चेंज होने पर इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। सर्दियों में तो थोड़ा सा भी ये एक कदम भी नहीं चल पाते थे, बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टर के पास सिस्टर आप गए थे तो क्या कहा था डॉक्टर ने आपको? ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 70% ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਫੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, 30% ਫੇਫੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਪੰਪ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 7 ਵਜਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और इस तरह 5 साल लगातार आपने मेडिसिन खाई। हाँ जी। और आपको मन में यही रहता था पता नहीं कल को मेरी सांसें चलेगी कि नहीं, मैं खत्म हो जाऊं, मर जाऊंगी शायद मैं इसी बीमारी में। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ, ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਜੀ। और उस समय इतने ज्यादा हालात खराब थे कि कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। लगातार मेडिसिन खाएं, पंप का इस्तेमाल करते रहे। सेहत जो थी, आपके हालात जो थे वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे। हाँ जी, बच्चों जो स्कूल जाना होंदा है ना ब्रदर जी, मैं तो उठ के बैठ के रोटी पानी भी नहीं बना सकती सी। और कितने डॉक्टरों के पास गए थे आप? 6-7 डॉक्टरों के कोल गई सी ब्रदर जी। और हर एक डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको लाइफ टाइम इस पंप का यूज करना पड़ेगा। कहते जे तुसी बंद कर दिता ना शायद तेन कुछ हो सकता। मैं डरदी हुंदी सी, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਚਿੱਕਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਛੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਪ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। आप कहीं पर भी जाते थे तो इस पंप को साथ ही में लेके जाते थे? मेरे कोल ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਪ। ਮੈਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਪ ਪਾਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਪੰਪ ਹੀ ਆ। और इतने ज्यादा हालात खराब हुए कि मन में सुसाइड करने के थॉट आते थे। हाँ जी। आपके मन में ये रहता था मैं बीमारी से चंगी नहीं हो पाऊंगी, इस लाइफ से चंगा है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मर जाऊं। हाँ जी, मैं दिल करता ही ना कुछ दिल करता ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾਸ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਖਤਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੌਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਤਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਥਮੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਾ। ਅਸਥਮਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਸਥਮਾ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। कैसे आपको फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे गुआंढी ने दसिया, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी दुखी सी, मेरे गुआंढी आए कहते तू जाया कर। मैं 1-2 बारी आई पर मैं विश्वास नहीं किया, मैं फिर चले गई। मैं कहा नहीं मैं अपने रब नूं नहीं छड्डना। मैनू नहीं सी पता रब असली है या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तारीफ करे जिहने मैनू जिंदगी दी। इस टाइम मैं गवाही दे नाल खड़ी हां यीशु दे घर च। हाथों को उठा के थैंक्स करें, धन्यवाद दें, क्योंकि आप जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में बैठे हैं। ये वो हजूरी है जो आपके हालातों को बदलेगी, आपकी जिंदगियों को, आपके घरानों को बदल के रख देगी। थैंक यू जीसस। और उसके बाद ये बहन 6 फरवरी 2022 को चर्च मीटिंग में आए, अटेंड की इन्होंने।
और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। दमे की रोग, दमे की दुष्ट आत्माएं बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। जो नहीं चल सकते वो चलना शुरू हो। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उन प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। क्या हुआ रिसीव करने के बाद फिर? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹੜ ਕੀਤੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੰਪ ਭੈਣ ਤੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਧ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮਿਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਆਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਖੜੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, एकदम से उस बीमारी से आजाद किया। कहते मुझे होश नहीं थी, जब होश में आई मैंने अपने आप को चेक करके देखा, कोई सांस नहीं फूल रही थी। दौड़ कर देखा, बिल्कुल ठीक थी, एकदम से बिल्कुल ठीक थे। सिस्टर, उसी समय आप आ गए थे अपनी गवाही देने के लिए। Yes, brother जी, आइए yes. हम उस गवाही को भी इनकी देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। बस ये भी एक अमेजिंग टेस्टमनी। ये अस्थमा के अटैक होते थे और पंप दिन में 4-5 बार यूज करते थे। कहते इतना अटैक बढ़ गया था कि एक कदम भी चल नहीं पाते थे। ऐसा लगता था कि अभी अटैक होगा और मैं मर जाऊंगी। लेकिन आज जैसे आपने बोला कि दमे की दुष्ट आत्मा आपको छोड़े, तभी खुदा की आत्मा ने छुआ और हील है ये बहन। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे इश्क़ हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे इश्क़ हाथों में, मैं तेरी राह पर चलता। इसके हाथ से निकाल लो, ये छूट गए यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। तो आप भी छूट गए आज। सब तारीफ करें, हाथों को उठाएं, होंठों को खोलें, जय जयकार करते हुए, क्योंकि वो अद्भुत है। वो अद्भुत रीति के साथ अपने दास के द्वारा अपने लोगों को छूता है और चंगा करता है। और सिस्टर, उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं। हाँ जी भाजी। अपने आप को घर में अपने हाँ काम जी। करके मिट्टी धूल हाँ का चेक किया है। हाँ जी, हाँ जी। आप दौड़ कर दिखाएं, सब थैंक्स करें, तारीफ करें, क्योंकि हम जानते हैं जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। डॉक्टर कुछ भी कहें, हालात कुछ भी कहें, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ में कैसे भी क्यों ना हो, पर जब आप जीवत हजूरी में एंटर होते हैं, जीवत परमेश्वर के पास, जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, जब आप उस बाप के पास पहुंचते हैं, तो वो आपकी मानतियों को आपकी जिंदगियों से निकालता है और आपको बिल्कुल क्लीन कर देता है। सिस्टर, आप बिल्कुल हील है उस दिन से। हाँ जी, बिल्कुल फ्री। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਵਤ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਜਾਵੇ। क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को? अभी भी बहुत सारे लोग बहन भाई इस बीमारी में हैं, और भी बीमारियां, क्या कहना चाहते हैं ਮੈਂ आप ਉਹਨਾਂ उन ਨੂੰ लोगों ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਮਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਬਸ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਸਥਮਾ ਇਤਨੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ, ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। आमेन, हालेलुया। सब तारीफ करें यीशु कार्य के लिए, सेले के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम कह देते हैं कुछ साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल ये लोग इस बीमारी में हैं। जो लोग बीमारी में रहते हैं, जिन्होंने एक एक पल, एक एक क्षण उस बीमारी में व्यतीत किया है, उस बीमारी का सामना किया है, उन्हें पता होता है कि मेरी जिंदगी कैसी थी। और उन्हें पता है उस आनंद का जो यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में उठेला है, उन छुटकारे का मतलब उन्हीं को पता है, जिन्होंने सालों उस बीमारी में अपनी लाइफ को व्यतीत किया है। सब थैंक्स करें छुटकारे के लिए। आप जब आप खुदा के दास आपके दरमियान होंगे,
ये आनंद आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। वो बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में होगा। परमेश्वर आपको बड़ी बीमारियों से आजाद करेगा, बड़े आनंद से भर देगा। धन्यवाद दें, हाथों को उठाएं। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं ब्रांचेस में मौजूद है, धन्यवाद दें, होंठों को खोले, तारीफ करते हुए सब जन।